Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on the topic of seizure disorder and epilepsy. And what we were discussing different drugs used in the management and treatment of epilepsy. The next drug which we are going to discuss is, or the fourth drug is valproic acid. Its mechanism of action, it increases the GABA level, which is inhibitory neurotransmitter. Potentiate the post-synaptic GABA response, inhibiting the enzymatic response for the catabolism of GABA. Means those enzymes which degrade the GABA, it inhibit that enzyme so that GABA activity will be prolonged and it will produce the inhibitory effect on the nerve. And affecting the potassium channel and creating membrane stabilizing effect. If the membrane, not the nerve membrane, is stabilized, so action potential will not be generated. As far as concerned with the administration and dosage of this drug for adult, valproic acid is administered orally, usually in a dose of 1000 to 3000 milligram daily in divided doses. इसी तरीके से चिल्ड्रन में valproic acid is administered orally in a dose of 15 to 60 milligram per kg daily divided into 2 or 3 doses, 2 या 3 डोजों में डिवाइड करके. मेडिकेशन शुड बी टेकन विद फूड टू रिड्यूस द GI अपसेट. फूड के साथ GI इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा और या मिनिमाइज हो जाएगा. टैबलेट्स और कैप्सूल्स शुड बी स्वॉलोड नॉट च्यूड. ठीक है, वाटर के साथ जो है वो स्वॉलो कर लें, च्यू ना किया जाए, बिकॉज ऑफ अवॉइड इरिटेशन ऑफ द माउथ एंड द थ्रोट, क्योंकि ये जो है वो वरना माउथ या थ्रोट में इरिटेशन कॉज करेगी. Precaution and monitoring effects, very important point. There are some reports of hepatotoxicity and increase in liver function test. तो hepatotoxicity कर सकता है, LFT बढ़ेगा जिसकी वजह से, which are mostly reversible. लेकिन अच्छी बात ये है कि ये reversible है once the drug is withdrawn. The severity and incidences of hepatotoxicity increases when patient is younger than 2 years of age. तो कोशिश की जाए कि younger than 2 years एज में इसको जो है वो valproic acid को यूज़ ना किया जाए. Adverse effects, contact the physician if abdominal pain, nausea, vomiting, anorexia occur, and these could be symptoms of pancreatitis. क्योंकि अगर ये symptoms हो रहे हैं तो हो सकता है ये pancreatitis हो और इस सूरत में फ़ौरन ड्रग को स्टॉप करना पड़ेगा. इसी वजह से contact the physician. CNS effects, tremor, ataxia, diplopia, lethargy, drowsiness, behavioral changes and depression. GI effects क्या होंगे? Nausea and increase in appetite. Enteric coated divalproic sodium may reduce these side effects. अगर enteric coated यूज़ करें तो ये nausea and और जो increase appetite जो या GI effects हैं वो minimize हो जाएंगे. Dermatological effects include alopecia and petechia. Alopecia यानी loss of hair, petechia स्किन पर पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे. हेमेटोपोइटिक्स इफेक्ट यानी ब्लड सिस्टम पर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्रूजिंग, हेमाटोमा एंड ब्लीडिंग, इस तरह के इफेक्ट आएंगे. हेपेटिक इफेक्ट जैसा कि हमने बात की, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, LFT बढ़ेगा जिसकी वजह से एलिवेशन ऑफ एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स ऑफ द लिवर. एंडोक्राइन इफेक्ट्स क्या होंगे? डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड रिजल्टिंग इन इरेगुलर मेंसेस एंड सेकेंडरी एमेनोरिया भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग. पेनक्रियाटिक इफेक्ट्स, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा जिसकी वजह से जिसकी इनिशियल सिम्टम्स पर फ़ौरन ही कांटेक्ट करना है फिजिशियन से, जैसा कि हम यहाँ पे तस्करा कर चुके हैं पहले पॉइंट में. मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाइपर एमोनीमिया, एमोनिया लेवल बढ़ सकता है ओइंग टू रीनल ओरिजिन एंड डिसकंटिन्यूएशन मे बी कंसिडर्ड इफ लेथार्जी डेवलप्स. अगर कमज़ोरी वीकनेस होना शुरू हो जाए तो फ़ौरन डिसकंटिन्यू कर दें. सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन क्या है इस ड्रग के, विच इज़ valproic acid. प्रीमिडॉन डिक्रीजेज द valproic acid क्लियरेंस बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो इसकी डिक्रीज कर दी जाती है क्लियरेंस बाय इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म. फिनोबार्बिटॉल एंड फेनिटॉइन डिस्प्लेस प्रोटीन बाइंडिंग. ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग का इफेक्ट है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज टोटल फेनिटॉइन लेवल एंड इंक्रीज और नो चेंज इन ऑफ फ्री फेनिटॉइन लेवल. अच्छा, इसके अलावा क्लोनिजिपैम इंक्रीजेज द CNS टॉक्सिसिटी ऑन valproic acid. अदर मेडिकेशंस की बात की जाए अदर देन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एस्प्रिन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ valproic acid, वारफेरिन इनहिबिट द
सेकेंडरी फेज ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एंटासिड इंक्रीजेज द वेल्प्रोइक एसिड लेवल, तो इससे वेल्प्रोइक एसिड लेवल बढ़ जाएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव यूरिन कीटोन टेस्ट में रिजल्ट्स इन पेशेंट्स टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड, तो ये बात जहन में रहे कि वेल्प्रोइक एसिड से फॉल्स पॉजिटिव कीटोन बॉडीज आती हैं यूरिन में। दस पेशेंट विद डायबिटीज़ मस्ट यूज़ कॉशन व्हेन यूजिंग यूरिन टेस्ट, लिहाजा वो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं वो ये देख लें कि उसके लिए ये कंफर्म करना ज़रूरी होगा कि ये जो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आ रहे हैं ये फॉल्स पॉजिटिव हैं बिकॉज ऑफ वेल्प्रोइक एसिड या वाकई डायबिटीज़ की वजह से कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट मे बी ऑल्टर्ड बाय एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें थायराइड जो होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन ये कि ड्रग की वजह से वो एबनॉर्मल आ रहा होगा। नेक्स्ट ड्रग इज, फिफ्थ ड्रग इज phenobarbital. Mechanism of action, phenobarbital increases the seizure threshold by decreasing post-synaptic excitation by stimulating post-synaptic GABA A receptor inhibitors in response to the CNS depressants. तो phenobarbital क्या कर रही है कि सीजर का थ्रेशोल्ड बढ़ा देगी बाय स्टिमुलेटिंग पोस्ट साइनेप्टिक गाबा ए रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा कि CNS रिसेप्टर इनहिबिटर रिस्पॉन्सेज एज ए CNS डिप्रेसेंट, तो उस तरह से ये CNS डिप्रेसेंट का काम करेगी, और जब CNS डिप्रेस होगा तो फिर वो एक्सेसिव जो पोटेंशिएशन ऑफ या एक्सेसिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो एडल्ट में phenobarbital इज एडमिनिस्टर ओरली एट 90 to 30 milligram daily in 3 divided doses or as a single dose at bedtime, और children may receive 3 to 6 milligram per kg daily in 2 divided doses and adjustment is made as needed, अगर ज़रूरत हो तो adjustment की जा सकती है। phenobarbital के precaution and monitoring effects क्या हैं, that must be considered as very important point. phenobarbital produces a respiratory depression especially with parenteral administration, so patient should be monitored for respiratory depression. phenobarbital should be used with caution in patient with hepatic disease who may need dose adjustment, क्योंकि इनकी फिर dose adjustment की ज़रूरत पड़ेगी। phenobarbital has sedative effect in adults and produce hyperactivity in children, ठीक है, तो adults में sedation cause करती है, children में hyperactivity cause करती है। abrupt discontinuation of phenobarbital produces the withdrawal convulsion, ठीक है, तो इसको भी अंडर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ये देख लें कि इससे विड्रॉ करने से कन्वल्जन हो सकते हैं। इफ़ द ड्रग मस्ट बी डिसकंटिन्यूड अनदर गाबा ए एगोनिस्ट लाइक बेंजोडाइजिपीन पैराल्डिहाइड शुड बी सब्सटीट्यूटेड, और अगर कोई इसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो phenobarbital का जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करना ज़रूरी है, डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी है, तो फिर कोई और गाबा ए एगोनिस्ट दें ताकि ये जो विड्रॉवल कन्वल्जन है ये ना हो, लाइक बेंजोडाइजिपीन या फिर पैराल्डिहाइड। इसके अलावा ऑल्सो हैव पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन in elderly patients because elderly patients are already on many other types of drugs, usually like for example for hypertension or diabetes or arthritis or maybe some other chronic condition. Adverse effects, the physician should be notified if any of the following adverse effects occur, like sore throat, mouth soreness, easy bruising, bleeding, because they are bleeding and any sign of infection, because these are the issues particularly related with liver or hepatotoxicity. CNS effects include agitation, confusion, lethargy and drowsiness. Patient should avoid alcohol and another CNS depressant drugs. Respiratory effects, hypoventilation हो सकता है, एपनिया हो सकता है। एपनिया क्या होता है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ रेस्पिरेशन। Cardiovascular effects include bradycardia, hypotension. GI effects include nausea, diarrhea and constipation. If GI upset is experienced, phenobarbital should be taken with food, ठीक है, तो इसको जो है वो फूड के साथ लेने से ये GI upset जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, इंक्लूड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आफ्टर क्रॉनिक यूज, इट इज़ ए रेयर साइड इफेक्ट।
इसके अलावा मिससेलेनियस इफेक्ट इंक्लूड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्किन पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, बट बोथ ऑफ विच आर रेयर, ये दोनों रेयर एडवर्स इफेक्ट हैं. Significant interaction. Anti-epileptic drugs such as valproic acid and phenytoin increases the level of phenobarbital by decreasing the metabolism. तो valproic acid और phenytoin क्या कर रहे हैं? Decreasing the metabolism of phenobarbital and by this way increasing the level. Other drugs such as acetazolamide, chloramphenicol, cimetidine and furosemide increases the level of phenobarbital. ये भी इनके लेवल को increase करते हैं again by same mechanism by decreasing the metabolism of phenobarbital. Rifampin, pyridoxine and ethanol decreases the level of phenobarbital. ये अपोजिट इफेक्ट करते हैं कि phenobarbital लेवल को कम करते हैं by increasing the metabolism. तो इस तरह से ये phenobarbital का इफेक्ट आता है. Sixth drug is primidone. Mechanism of action. Primidone is a metabolite of phenobarbital. तो इसका एक्शन भी तकरीबन phenobarbital टाइप ही होगा. And phenyl ethyl malonamide, ठीक है, एंड फिनाइल इथाइल मैलोनामाइड विच इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म में कॉल्ड पीमा, विच हैज़ सम एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट. इट्स हैज़ ड्रग कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू फिनोबार्बिटॉल. यानी यही सारे इशूज़ हैं प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग वाले जो कि फिनोबार्बिटॉल के हैं वही प्रीमिडॉन के हैं, विथ सम डिफरेंसेस इन डोज एंड हाफ लाइफ. सिर्फ डोज और हाफ लाइफ में कुछ फ़र्क है. Primidone has short half-life of around 7 hours, which may require 3 times daily dosing. And Primidone is tolerated better if started at 50 mg at night for first 3 days until the target dose is reached. यहाँ तक के आहिस्ता आहिस्ता इसकी टारगेट डोज पर आप चले जाइए. So this is about Primidone. Ethosuximide की अगर हम बात करें, mechanism of action which is another drug. Mechanism of action. Ethosuximide may inhibit the sodium potassium adenosine triphosphatase enzyme. ठीक है, उससे क्या होगा कि अगेन सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम बाहर नहीं आएगा, तो एक्शन पोटेंशियल सबसाइड या डिप्रेस हो जाएगा. सो जब ये इसको इनहिबिट करेगा, सो रिड्यूसेस फ्रॉम निकोटिनामाइड एलिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड लिंक्ड एल्डिहाइड रिडक्टेज which is necessary for formation of gamma hydroxybutyrate which is associated with induction of absence seizure. अच्छा, अब ये जो है इसकी ज़रूरत होती है एब्सेंस सीजर की फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जब ये इसको ब्लॉक कर देगा तो ये एक्टिविटी नहीं होगी. सो एथोसक्सामाइड रिड्यूसेस और एलिमिनेट द ईईजी एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, तो ईईजी एबनॉर्मेलिटी को भी रिड्यूस या एलिमिनेट कर देगा. हाउ एवर एब्सेंस सीजर्स आर द ओनली सीजर इन विच नॉर्मल ईईजी हैज़ क्लिनिकल वैल्यू. उसमें नॉर्मल ईईजी की भी क्लिनिकल वैल्यू है. अभी हमने ये बात की थी कि एब्सेंस सीजर क्या होगा कि जिसमें पेशेंट जो होगा बात करते करते मिड सेंटेंस में रुक जाएगा अराउंड 10 to 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड के बाद फिर वो दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेगा जिस दौरान वो एब्सेंट हो गया था. सो व्हेन द ईईजी एबनॉर्मेलिटी इज करेक्टेड द सीजर्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड. इथोसक्सामाइड इज ए रिलेटिवली बिनाइन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग विद मिनिमम प्रोटीन बाइंडिंग. इस वजह से इसके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें, Ethosuximide is usually given orally in initial dose of 500 mg daily in adult and children and older children and 250 mg daily in children 3 to 6 years. ठीक है, 3 से 6 साल में 250 mg डेली और उससे ऊपर की एज में 500 mg डेली. द डोज में बी रेज्ड बाई 250 mg एवरी वीक. हर हफ्ते 250 mg बढ़ा सकते हैं अगर आपने जो है वो टारगेट डोज पर अभी नहीं गए. मैक्सिमम डोज इज 1.5 ग्राम डेली यानी 1500 mg डेली इन एडल्ट्स. इसके प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या है? ब्लड डिस्क्रेसियास यानी ब्लड पिक्चर डिस्टर्ब हो सकती है रिपोर्टेड एंड मेकिंग पीरियोडिक ब्लड काउंट नेसेसरी. लिहाजा टाइम टू टाइम सीबीसी करवाते रहें. There have been reports of hepatic and renal toxicity. So periodic renal and liver function test or monitoring is necessary. Cases of systemic lupus erythematosus have been reported. लिहाजा स्किन पे भी चेंजेस कोई आ रही हैं तो उसको मॉनिटर करते रहें. And as far as concerned with adverse effect of ethosuximide, तो फिर हम इसकी बात करें तो GI effects include nausea and vomiting. Small doses may lessen these effects. कम डोज में ये इफेक्ट नहीं होते. Ethosuximide should be taken with food if GI upset occur, क्योंकि फूड के साथ लेने से ये GI इफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं.
हेमेटोपोइटिक इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल इंक्लूड इसिनोफिलिया, ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया एंड ल्यूपस फॉर्मेशन. CNS effects include drowsiness, blurred vision, fatigue, lethargy, hiccups and headache. ये effects हो सकते हैं. Alcoholic beverage should be avoided with the medication. अच्छा जनाब, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूड कन्फ्यूजन एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी. डर्मेटोलॉजिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? प्लूराइटिस हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकती है और सीवियर केस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. जेनेटो यूरिनरी इफेक्ट्स, जिसमें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल डैमेज हो सकता है और हेमेटोरिया यानी यूरिन में ब्लड आ सकता है. मिससेलेनियस इफेक्ट इंक्लूड पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड मसल वीकनेस. ठीक है, यानी आई के सराउंडिंग में एडिमा, मसल वीकनेस. पेशेंट शुड ऑल्सो बी एडवाइज टू ऑफ द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेड, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि सनलाइट से, अल्ट्रावायलेट रेड से फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है. इस पर भी रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल है कि टू इन्फॉर्म द पेशेंट्स अबाउट पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट लाइक ब्लड डिस्क्रेसियाज, सिस्टमिक lupus erythematosus एंड suicidal thoughts and behaviors. So that could occur during the treatment. ऐसा कुछ भी हो तो फ़ौरन अपने प्रिस्क्राइबर को नोटिफाई करें. Medication guide must be dispensed with this product. As far as concerned with drug interaction, anti-epileptic drugs such as carbamazepine decreases the level of ethosuximide. कैसे? By increasing the metabolism. इसी तरीके से valproic acid increases the level of ethosuximide. कैसे? By decreasing the metabolism of ethosuximide. तो ये था क्लोनिज़ेपैम. यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी गुजरी है ल्यूपस, हेमेटोलॉजिक, हेमेटोपोइटिक इफेक्ट में. ल्यूपस जो है बेसिकली यानी ऑटो इम्यून टाइप रिएक्शन होता है, तो इसमें ऑटो इम्यून टाइप रिएक्शन भी हो सकता है. Now the eighth drug is, or the next drug is clonazepam. Now clonazepam की अगर हम बात करें, mechanism of action, clonazepam is a potent GABA A agonist, means inhibitory effect, GABA inhibitory neurotransmitter, but its efficacy decreases over several months of treatment, लिहाजा इसको भी under consideration रखना पड़ेगा. Administration and dosage की बात करें, for adult clonazepam is an oral agent that may be given in an initial dose of 1.5 mg daily, divided 2 or 3 times. The dose may be increased to a maximum of 20 mg per daily. Per day 20 mg तक जा सकते हैं. Children की अगर हम बात करें तो 0.01 to 0.03 mg daily in 2 to 3 divided doses, and dosage may be increased up to a maximum of 0.2 mg per kg daily. इसके जो क्लोनिज़ेपैम के प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स हैं. Patient with psychosis or acute narrow angle glaucoma and significant liver disease should use this medicine very cautiously. ठीक है, तो इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग देखनी पड़ेगी, हमें रखनी पड़ेगी क्लोनिज़ेपैम के साथ. एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, CNS एडवर्स इफेक्ट, ड्राउजीनेस, एटेक्सिया, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज इन चिल्ड्रन, एंड दीज में बी करेक्टेड बाय डोज रिडक्शन. तो ये CNS इफेक्ट्स कम रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर डोज रिडक्शन की जाए. रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स इंक्लूड हाइपर सिलाइवेशन एंड ब्रोंकियल हाइपर सिक्रीशन, यानी सिलाइवा ज़्यादा रिलीज होगा, ब्रोंकियल सिक्रीशंस बढ़ेंगे. मिससेलेनियस इफेक्ट इंक्लूड एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपेनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एनीमिया एंड वेट लॉस. रैम प्रोग्राम इस पे क्लोनिज़ेपैम पर भी एप्लीकेबल है. लाइक फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा कि टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल रिस्क including the occurrence of withdrawal symptom with abrupt discontinuation and suicidal thoughts and behavior. ये सब जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वाकई हो सकता है, तो इसकी अवेयरनेस पेशेंट को देना ज़रूरी है कि इफ़ एनी ऑफ द सच टाइप ऑफ इशू स्टार्ट्स टू डेवलप, immediately contact to their prescriber or get medical attention. मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद द प्रोडक्ट, ताकि पेशेंट खुद भी इस ड्रग के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, खुद भी पढ़ सके, ताकि उसको जो है वो गाइडेंस मिले कि किस किस्म की सिचुएशन होगी तो उसको क्या करना चाहिए. As far as concerned with the drug interaction of clonazepam, anti-epileptic drugs such as phenytoin increases the level of clonazepam. कैसे इंक्रीज करती है? By decreasing the metabolism. इसी तरीके से clonazepam decreases the efficacy of levodopa, जो कि एक एंटी पार्किंसंस ड्रग है. इसकी
जो एफिकेसी है उसको डिक्रीज़ करते हैं, एंड सीरम लेवल एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन का जो सीरम लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो ये इंटरेक्शन क्लोनेजिपैम का लीवोडोपा और डिजॉक्सिन के साथ एग्जिस्ट करता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग और 9th ड्रग इज फेल्बामेट। अच्छा, ए प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट द ड्रग इंटरेक्ट विद ग्लाइसिन मॉड्यूलेटर साइड ऑन एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। तो ये NMDA रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करती है, ठीक है, इंटरेक्ट करती है, एंड बाय ब्लॉकेड ऑफ NMDA में कंट्रीब्यूट टू न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ फेल्बामेट। तो ये क्या है, प्रपोज मैकेनिज्म है, यानी इसका भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें मालूम नहीं है। फेल्बामेट इज़ यूज एज मोनोथेरेपी और एडजंक्टिव थेरेपी, दोनों तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, और विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन इन एडल्ट्स एंड जनरलाइज सीजर एसोसिएटेड विद लेनॉक्स-गास्टॉट सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो कोई जनरलाइज सीजर हो या सेकेंडरी जनरलाइज सीजर हो, किसी भी किस्म का सीजर हो बच्चों में, ख़ास तौर से लेनॉक्स-गास्टॉट सिंड्रोम हो, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। द US FDA recommended the use of felbamate be restricted to only those patients who are refractory to other medication। ठीक है, तो US FDA कहती है कि फेल्बामेट सिर्फ उन पेशेंट्स को दिया जाए जिसमें, जो अभी तक हम ड्रग जो दूसरी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड ना कर रही हैं। रिफ्रैक्टरी मीन्स कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, रिस्पॉन्स इज पुअर, तो फिर ये ड्रग यूज़ की जाए। इस ड्रग को एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ नहीं किया जाए। इसका एक रीज़न है, वो क्या रीज़न है, बिकॉज ऑफ रिस्क बेनिफिट रिलेशनशिप वारंट्स इट्स यूज बिकॉज ऑफ सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि इससे रिस्क बहुत ज़्यादा है फेल्बामेट से, हेपेटोटॉक्सिसिटी का भी और एप्लास्टिक एनीमिया का भी। इस वजह से इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अबव 14 ईयर्स ऑफ एज, monotherapy initially 1.2 gram in 3 to 4 doses daily. The dose may be increased to 600 milligram increment every 2 week। ठीक है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में 600 मिलीग्राम बढ़ा सकते हैं, टू ए मैक्सिमम डोज ऑफ 2.4 ग्राम डेली बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड देयर आफ्टर, और उससे ज़्यादा अगर ऊपर जाना हो तो बस मैक्सिमम आप जा सकते हैं 3.6 ग्राम यानी 3600 मिलीग्राम डेली इफ़ नेसेसरी। एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1.2 ग्राम इन 3 to 4 डोजेज डेली विद रिडक्शन ऑफ द डोजेज ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बाय 20 to 33%। और जो दूसरी ड्रग होगी जिसके साथ एडजंक्टिव दे रहे हैं उसकी डोज फिर 20 to 30% कम कर दें। द डोजेज ऑफ फेल्बामेट मे बी इंक्रीज इन इंक्रीमेंट ऑफ वही अगेन सेम प्रोटोकॉल 1.2 ग्राम एट वीकली इंटरवल टू ए मैक्सिमम डोज ऑफ 3.6 ग्राम डेली। Conversion to monotherapy initially 1.2 gram daily in 3 to 4 doses and with the reduction of dosage of anti-epileptic drugs by 33% at week 3। और अगर मोनोथेरेपी पे लेकर आना है तो 1.2 मिलीग्राम डेली 3 और 4 डिवाइडेड डोजेज में आप इसको यूज़ करें, और दूसरी ड्रग जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है उसको 3 हफ्ते में 33% तक ले जाएं। द फेल्बामेट द फेल्बामेट डोजेज may be increased to 3.6 gram daily and other epileptic drugs discontinue और dosage further reduction in stepwise fashion। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 3.6 मिलीग्राम तक लेते चले जाएं फेल्बामेट को, और दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर ऑल ऑफ ए सडन डिसकंटिन्यू कर सकते हो तो कर दें, वरना आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टेप वाइज कम करते चले जाएं और फिर बिल्कुल बंद कर दें ताकि पेशेंट मोनोथेरेपी पर आ जाए। Children 2 to 14 years of age with Lennox-Gastaut syndrome, adjunctive therapy initially 15 milligram daily in 3 to 4 doses and the dose of other anti-epileptic drugs is reduced by 20%। ठीक है, the amount of felbamate may be increased in an increment of 15 milligram per kg at a weekly interval, और maximum आप जा सकते हैं 45 milligram per kg daily। Further reduction in the dosage of other anti-epileptic ड्रग में भी नेसेसरी, यानी अगर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप कम कर सकते हैं दूसरी ड्रग जो कि पेशेंट को जा रही है। फेल्बामेट के प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं? देयर आर 2 वेरी टॉक्सिक इफेक्ट्स, दैट इज एप्लास्टिक एनीमिया एंड लिवर फेलियर विच लीड टू द डेथ ऑफ द सम पेशेंट्स
इसी वजह से जो है वो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर ए प्लास्टिक एनीमिया द ऑनसेट रेंज फ्रॉम 5 to 30 वीक्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, यानी स्टार्ट करने के 5 से 30 हफ्ते के बाद ए प्लास्टिक एनीमिया का ऑनसेट है। सो वीकली और बाई वीकली CBC आर रिकमेंडेड इनिशियली। इसी वजह से हर हफ्ते या हर 15 दिन में कंप्लीट ब्लड काउंट कराते रहें, ये चेक करने के लिए कि कहीं ए प्लास्टिक एनीमिया तो नहीं डेवलप हो रहा। इसी तरीके से फॉर लिवर टॉक्सिसिटी टाइम बिटवीन इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दीज केसेस रेंजेस फ्रॉम 2 to 3 वीक्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, यानी 2 से 3 हफ्ते के बाद लिवर टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट लिवर फंक्शन टेस्ट be performed before initiating the therapy to identify patient who have evidence of pre-existing liver damage, and liver function test should be performed weekly or bi-weekly। अच्छा, इसी वजह से जो है वो जब ये फेल्बामेड आप देने जा रहे हैं तो इस ड्रग स्टार्ट करने से पहले आप एक दफ़ा LFT करा लें, लिवर एंजाइम्स करा लें, ये चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं ड्रग स्टार्ट करने से पहले ही जो है वो ड्रग जो वो देने से पहले ही जो है लिवर जो है वो उसमें डैमेज है, यानी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डैमेज है, फिर तो ये ड्रग नहीं देंगे। लेकिन अगर वो लिवर ठीक है तो आप स्टार्ट करा दें, और फिर स्टार्ट कराने के बाद वीकली और बाई या फिर बाई वीकली यानी हर 15 दिन में जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। The FDA recommend that the drug be used only in patients who are refractory to other medication in whom the risk-benefit relationship warrants its use। इसी वजह से ये इस ए प्लास्टिक एनीमिया और लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से FDA ने रिकमेंड क्या किया है कि ये ड्रग सिर्फ उन पेशेंट्स में यूज़ की जाए जो कि रिफ्रैक्टरी हों अदर मेडिकेशन के लिए, जिसमें रिस्क बेनिफिट इवेल्युएट किया जाए। इफ़ द रिस्क इज़ लोअर एंड बेनिफिट इज़ हायर देन यस फेल्बामेड कैन बी स्टार्टेड। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात की जाए, कॉन्टैक्ट फिजिशियन इफ साइन ऑफ इन्फेक्शन अकर, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग और ब्रूजिंग, द ड्रग दिस ड्रग हैज़ पोटेंशियल टू कॉज aplastic anemia means bone marrow effect. The patient should be monitored for these toxicities by CBC and liver function test weekly or bi-weekly until discontinuation of any of these signs and toxicities occur। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टॉक्सिसिटी आ रही है CBC और लिवर फंक्शन में आपने देख ली है तो फिर इस ड्रग को स्टॉप करें और फिर वो देखें कि ये टॉक्सिसिटीज़ किस तरह से कम हो रही हैं। CNS इफेक्ट्स इंसोम्निया, हेडेक, एंजाइटी, हाइपर एक्टिविटी एंड फटीग है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स पेरिफेरल एडिमा, वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन एंड इन सम पेशेंट हाइपरटेंशन। ऑक्यूलर इफेक्ट्स डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है। GI इफेक्ट्स एनोरेजिया, वेट डिक्रीज एंड नोजिया। हेमेटोलॉजिक इफेक्ट इंक्लूड लिम्फेडिनोपैथी, ल्यूकोपेनिया, thrombocytopenia। मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स इंक्लूड हाइपोकैलीमिया एंड मे बी हाइपोनेट्रीमिया, ये हो सकता है, और कार्डिक एरिथमिया भी हो सकता है, मीन्स QTc प्रोलॉन्गेशन एंड टॉर्सेट डी पॉइंटर्स। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका इंटरेक्शन है फेल्बामेट एंड फेनिटॉइन, फेल्बामेट एंड कार्बामेजेपिन, फेल्बामेट एंड वेल्प्रोइक एसिड, एंड फिर हम इनके एडवर्स इफेक्ट पर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो फेल्बामेट एंड फेनिटॉइन, फेल्बामेट कॉजेज एन इंक्रीज इन फेनिटॉइन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ठीक है, तो फेल्बामेट क्या कर रहा है, फेनिटॉइन कंसनट्रेशन को बढ़ा रहा है। फेनिटॉइन डबल्स द फेल्बामेट क्लियरेंस। ठीक है, जबकि फेनिटॉइन फेल्बामेट पे क्या कर रहा है कि उसकी क्लियरेंस बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से फेल्बामेट के लेवल कम हो जाएंगे, विच इज़ फॉर रिजल्टिंग इन 45% डिक्रीज इन फेल्बामेट लेवल। फेल्बामेट और कार्बामेजेपिन की बात करें तो फेल्बामेट कॉजेज ए डिक्रीज इन कार्बामेजेपिन लेवल। फेल्बामेट कार्बामेजेपिन का लेवल कम कर रही है एंड इंक्रीजेस कार्बामेजेपिन मेटाबोलाइट। ठीक है, तो उसके मेटाबोलाइट बढ़ जाएंगे। इन एडिशन कार्बामेजेपिन कॉजेज ए 50% इंक्रीज इन फेल्बामेट क्लियरेंस रिजल्टिंग इन 40% डिक्रीज इन स्टेडी स्टेट ट्रफ कंसनट्रेशन, जबकि कार्बामेजेपिन भी उसी तरीके से फेल्बामेट की क्लियरेंस बढ़ा रही है बॉडी से, जिसकी वजह से उसके प्लाज्मा लेवल कम हो रहे हैं, जो कि तकरीबन 40% है। फेल्बामेट और वेल्प्रोइक एसिड का क्या इंटरेक्शन है, फेल्बामेट कॉजेज एन इंक्रीज इन वेल्प्रोइक एसिड लेवल बट वेल्प्रोइक एसिड डज नॉट अफेक्ट द फेल्बामेट लेवल। Adverse effects, signs and symptoms associated with increased level and toxicity are anorexia, nausea, vomiting, insomnia and headache। तो ये adverse effects हैं, significant interaction and adverse effects हैं with फेल्बामेट। तो ये इंटरेक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया और अब हम आते हैं अपनी 10th ड्रग पे, विच इज़ गाबापेंटीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें गाबापेंटीन के, इट इज़ एन एनालॉग ऑफ गाबा, यानी बिल्कुल गाबा लाइक है।
इट मीन्स कि इट विल वर्क एज ए इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी एक्टिव एक्शन पोटेंशियल को सप्रेस करेगा. इट इंक्रीजेज द गाबा टर्नओवर बट डज नॉट बाइंड टू गाबा ए और एनी अदर established neurotransmitter receptor. Its mechanism of action is currently unknown, although it binds to a specific receptor in brain and inhibit the voltage dependent sodium current. ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये ब्रेन में सोडियम करंट को इनहिबिट करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल को सप्रेस करता है. इट हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव एज एन एड ऑन ड्रग इन पेशेंट विद पार्शियल सीजर विद और विदाउट सेकेंडरी जनरलाइजेशन. तो ये देखा गया है कि ये ड्रग अलोन तो नहीं, लेकिन एज ए एड ऑन थेरेपी के तौर पर पार्शियल सीजर में वेरी इफेक्टिव, और इस वजह से इसको एड ऑन थेरेपी के तौर पर यूज़ किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो पेशेंट अबव 12 ईयर्स ऑफ एज रिसीव 900 टू 1.8 ग्राम 900 मिलीग्राम टू 1.8 ग्राम डेली. एडमिनिस्टर एज एडजंक्टिव थेरेपी इन 3 डिवाइडेड डोजेस. अच्छा, titrating to an effective dose normally can be achieved within 3 days by initiating with 300 milligram and then increasing the dose in 300 milligram increased over the next 2 days and established a maximum daily dose of 900 milligram daily. यानी पहले दिन 300 मिलीग्राम दिया, फिर अगले दिन 300 बढ़ा के 600 कर दिया, और थर्ड डे 900 मिलीग्राम तक पहुंचा दिया. If necessary, dosage may be increases to maximum 1.8 gram daily, यानी 1800 milligram. To minimize the potential side effects, especially somnolence, dizziness and fatigue, the first dose on the day 1 may be administered at the bed time. क्योंकि इससे नींद बहुत ज़्यादा आएगी, डिजीनेस और वीकनेस होगी, लिहाजा जो पहली दफ़ा डोज दे रहे हैं तो वो फिर रात में सोते टाइम दी जाए. Patients 3 to 12 years of age should receive 10 to 15 milligram per kg in 3 divided doses up to a maximum dose of 25 to 50 milligram per kg per day. तो ये डोज है 3 to 12 years of age की. The drug is primarily excreted renally, therefore dosage should be adjusted for patient who have compromised renal function. क्योंकि लाजिम बात है कि जो ये किडनी से एलिमिनेट होती है, तो अगर किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो तो डोज उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी. The drug does not bind to plasma protein and there is no significant pharmacokinetic interaction with other commonly used anti-epileptic drugs, यानी प्रोटीन बाइंडिंग वाला कोई फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन नहीं है. If gabapentin is discontinued or an alternative anticonvulsant medication is added, it should be done gradually over a period of 1 week. यानी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी ड्रग ऐड करके उसकी डोज बढ़ाई जाए, और इसकी ड्रग इस गाबापेंटिन की डोज आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म की जाए. प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग की इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, गाबापेंटिन इज़ यूजफुल इन पेशेंट हु आर टेकिंग अदर मेडिकेशन फॉर एपिलेप्सी और अदर क्रॉनिक डिजीजेस, एंड इट मे बी स्पेशली यूजफुल फॉर एल्डरली पेशेंट बिकॉज ऑफ लेस साइड इफ़ेक्ट्स और कम इंटरेक्शन होने की वजह से. गाबापेंटिन इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड इट कैन बी टेकन विद और विदाउट फूड. हाउएवर पेशेंट हु हैव GI प्रॉब्लम माइट हैव प्रॉब्लम विद एब्जॉर्प्शन. जिनको GI प्रॉब्लम है उनमें हो सकता है एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉब्लम हो. टेपर ऑफ ओवर एटलीस्ट 1 वीक में कॉज विड्रॉवल सिम्टम. अगर आप इसको बंद कर रहे हैं एक हफ्ते के उससे, तो हो सकता है विड्रॉवल सिम्टम्स आए, सच एज एनजाइटी, इंसोम्निया एंड नॉसिया. तो इसको बड़ा देख के कम करना पड़ेगा. अच्छा, मे कॉज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट विद यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट, यानी यूरिन प्रोटीन यूरिया दे सकता है ये, बट दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गाबापेंटिन. Adverse effects, common side effects are somnolence, dizziness, ataxia, fatigue, weight gain and nystagmus. CNS effects, somnolence, dizziness, ataxia and fatigue. GI effects include dyspepsia, means badhazmi, dryness of mouth, constipation and increase in appetite. Ocular effects, diplopia, blurred vision, nystagmus. Cardiovascular effects, congestive heart failure, in some patient hypertension, in some patient hypotension. Dermatologic effects क्या क्या हो सकते हैं? Dry skin, फंगल डर्माटाइटिस हो सकता है, हर्पीज इन्फेक्शन हो सकता है, और सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है स्किन पे, विच इज़ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. एंडोक्राइन क्या हो सकता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज कर सकता है. इस पर भी रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल है बिकॉज द ड्रग इज हैविंग ए सुसाइडल थॉट इशू ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर. सो टू इन्फॉर्म पेशेंट्स फॉर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर दैट कुड अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, सो पेशेंट शुड इन्फॉर्म इमीडिएटली टू देयर प्रिस्क्राइबर. Medication guide must be dispensed with this product again.
सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन की बात करें अगर हम गाबापेंटीन से, तो एंटासिड एंड गाबापेंटीन. Antacid reduces the bioavailability of gabapentin by 20% by reducing their absorption of gabapentin, and gabapentin इसी वजह से could be taken 2 hour after antacid use. लिहाजा अगर एंटासिड और गाबापेंटीन दोनों देना ज़रूरी है तो एंटासिड के 2 घंटे के बाद गाबापेंटीन जो है वो दी जाए. साइमेटिडीन एंड गाबापेंटीन का क्या इफेक्ट है? साइमेटिडीन डिक्रीजेज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ गाबापेंटीन बाय अराउंड 14% एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजेज द गाबापेंटीन प्लाज्मा लेवल. लेकिन ये जो प्लाज्मा लेवल 14% इंक्रीज हो रहा है, इससे कोई क्लिनिकली पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता, बिकॉज दिस अमाउंट इज़ नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ अगर हम बात करें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ गाबापेंटीन का रिएक्शन क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीजेज द लेवल ऑफ नॉरएथेनड्रोन बाय 13%, एंड दिस अमाउंट मे नॉट बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. यानी गाबापेंटीन नॉरएथेनड्रोन का जो लेवल है वो 13% इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ये 13% इंक्रीज़ होने से पेशेंट को किसी किस्म का कोई हार्म नहीं होता, लिहाजा इट इज़ नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर. 10th ड्रग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट ड्रग जो लेवोट्रोजीन है, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.